Alright, so the first question that you can see right on your screens is, in most mammals, the testes are located in the scrotal sac for A. To provide more space to visceral organs, B. Spermatogenesis, C. Sex differentiation, or is it D. Independent functioning of the kidney? अब देखो ज़्यादातर मैमल्स में जो टेस्टिस होती है, सबको पता है एक स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होती है, विच इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है लोकेशन. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली इफ यू ब्रेक द टर्म स्पर्मेटो विच स्टैंड्स फॉर स्पर्म एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज रेफर्ड टू एज स्पर्मेटोजेनेसिस. अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना, एक बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस होता है. इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर विच इज़ स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस हैम्पर हो जाता है एंड इट कैन नॉट रियली टेक प्लेस, विच इज़ वाई जो हमारी testis है वो outside the abdominal cavity present in a sac-like structure which is called the scrotum. Because scrotum is what maintains the temperature of testis. It maintains the temperature of the testis around 34 degree Celsius. 34 degree Celsius के आसपास टेम्परेचर रहता है टेस्टिस में, in the scrotum basically, which is 2 to 2.5 degree Celsius lower than the body temperature, and it helps in the process of spermatogenesis. कई सारे temperature receptors वगैरह भी located होते हैं in the scrotum and which maintains all the temperature and all, right? So why is it located in the scrotal sac? It is for the purpose of spermatogenesis. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 2, and here's what it says. Question number 2 बोलता है, the temperature of the scrotum which is necessary for the functioning of the testis is always around dash below body temperature. Is it A 2 degree Celsius? Is it B 4 degree Celsius? Is it C 6 degree Celsius? Or is it D 8 degree Celsius? What do you think? बच्चों जो टेम्परेचर होता है स्क्रॉटम का, टेम्परेचर जो होता है स्क्रॉटम का वो काफ़ी नेसेसरी होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज, राइट? तो वो जो टेम्परेचर होता है स्क्रॉटम में मेंटेन करना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना, वो काफ़ी ज़रूरी होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस, वरना स्पर्मेटोजेनेसिस हैम्पर हो जाएगा. तो ये जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, लगभग बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है? इट्स ऑलवेज अराउंड 2 to 2.5 degree Celsius lower than the body temperature, right? So it's always around 2.5 to 2 degrees Celsius lower than the body temperature. That makes option number A the correct answer. Alright, now let's move on to the next question, which is question number 3, and here's what it says. Question number 3 बच्चा बोलता है, the given figure shows a diagrammatic sketch of a portion of human male reproductive system. You have to identify the parts labeled as A, B, C and D, and then you have to select the correct answer accordingly. ठीक है, तो here are the options and then you just have to identify the part. अगर मैं बात करूँ A की, what do you think बच्चा A is? जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं, एंड इफ़ यू टू हैव लुक एट इट, अब देखो यहाँ से A क्या है. A pretty much अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम से इफ़ यू ट्राई एंड रिलेट टू इट, ये एक्चुअली में A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A एक्चुअली इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ लूपिंग ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, लूप कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर से. तो ये है एक्चुअली में वास्ट डिफरेंस. A is actually vast difference, right? So A is vast difference, so we can clearly eliminate option number C and D. ठीक है, उसके बाद अगर मैं B की बात करूँ तो B बच्चा क्या है? B अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो vast difference है, it ultimately receives the duct from the seminal vesicle and together they form the common ejaculatory duct. तो ये B जो है आप कैसे क्लियरली देख सकते हैं, this is the seminal vesicle, right? So B is the seminal vesicle. अगर मैं बच्चा C की बात करूँ, right? If I talk about the C, सी आप क्लियरली देख सकते हो, ऑल्दो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि दीज आर 2 सेपरेट स्ट्रक्चर्स, बट ये एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन है. तो इट अपीयर्स बट इट्स एक्चुअली अ सिंगल अनपेयर्ड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं द प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट? तो सी इज़ द प्रोस्टेट. और अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी की, इट इज़ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इफ़ यू पे क्लोजर अटेंशन, और अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो यू कैन क्लियरली सी ये है अपना यूरेथ्रा विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, on either side of the urethra you have the bulbourethral glands. I hope that is clear to everybody. ठीक है, तो D हमारा हो गया bulbourethral gland. That makes option number A the correct answer. I hope that is crystal clear to everybody. Alright, now let's move on to the next question, which is question number 4. And here's what question number 4 says. Question number 4 again is a diagram based question which says the given diagram refers to the transverse section of a testis which is showing a sectional view of a few seminiferous tubules. You have to identify the parts labeled as A to D and then you have to select the correct option accordingly. ठीक है, तो अगर बच्चों मैं बात करूँ A की, what do you think A represents? A यहाँ पे क्या represent कर रहा है? मैं थोड़ा सा zoom in कर दूँ for you guys. You just tell me what does A represent? क्या आपको दिख रहा है? ये एक्चुअली में पूरा एक है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज एक्चुअली लाइन बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. तो एक तो है ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया, और ये जैसे ट्रायंगुलर शेप ये सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर टेंट लाइक सेल्स. दीज टेंट लाइक सेल्स, दीज आर कॉल्ड सिस्टेंटिकुलर सेल्स और सर्टोली सेल्स. ठीक है, नर्व सेल्स भी बोलते हैं. सो ए इज़ नथिंग बट ए स्टैंड्स फॉर सर्टोली सेल्स. तो ए है हमारा सर्टोली सेल्स. 3 ऑप्शन में सर्टोली सेल्स, वी कैन क्लियरली एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी. अगर मैं बात करूँ बच्चा बी की, तो व्हाट डू यू थिंक बी रिप्रेजेंट्स हियर?
ठीक है। तो एक तो हो गए हमारे स्पर्मेटो, यहाँ पे एक तो हो गए हमारे सर्टोली सेल्स, और जो दूसरे तरीके की सेल्स हैं विच एक्चुअली लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्पर्मेटोगोनियम, राइट। तो ये मेल जर्म सेल्स, तो बी स्टैंड्स फॉर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो बी स्टैंड्स फॉर स्पर्मेटोगोनिया, बी स्टैंड्स फॉर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजोआ तो डेफिनेटली नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट ए एज वेल, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की, जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और द लेरिक सेल्स, राइट। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, द सी स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड विद दैट वी क्लियरली एलिमिनेट option B as well. And if you look at the last one, which is what does D represent, आप clearly देख सकते हो, right, towards the lumen you see these, you know, with tail like structures, ये यहाँ पे क्या है, these are nothing but these are the spermatozoa, these are the spermatozoa or the sperms, right. So D goes with sperm, so that makes option number D the correct answer बच्चा। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। A stands for Sertoli cells, B spermatogonia, C interstitial cells, and option number D stands for sperms. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 5, and here's what it says. Question number 5 बोलता है which of the following is correct about mammalian testes, इनमें से क्या सही है mammalian testes के बारे में। तो कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन से सही हैं। अब देखो ग्राफिन फॉलिकल्स की अगर बात करूँ, ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स, अब हम सबको पता है जो ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं देर एक्चुअली यू नो अ पार्ट ऑफ द ओवरीज, राइट, एंड नॉट द टेस्टिस। तो उसकी बेसिस पे हम क्लियरली ए, बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। इफ वी लुक एट ऑप्शन सी नाउ, सी है सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड लेरिक सेल्स, राइट। तो इफ यू लुक एट ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली सेल्स, राइट, सर्टोली सेल्स, इनको हम नर्वस सेल्स भी बोलते हैं, ये क्लियरली प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, राइट। टेस्टिस में हमारे पास होता है यू नो अगर ये सेक्शनल व्यू दिखाऊँ, टेस्टिस में हमारे पास होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, यू नो ऐसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल में वी हैव 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर मैं ऐसे इलोंगेट करके बनाऊँ और सामने से इनका क्रॉस सेक्शन देखूँ तो दे आर लाइन्ड बाय 2 types ऑफ सेल्स, दे आर लाइन्ड बाय 2 types ऑफ सेल्स। एक तो होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया और एक होते हैं हमारे टेंट लाइक सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डेफिनेटली प्रेजेंट होता है, लेरिक सेल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जगह होती है इंटरस्टिशियम, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड लेरिक सेल्स। सो इनमें से which of the following is correct about mammalian testes, that is option number C, right. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 6, and here's what it says. Question number 6 बोलता है the nutritive cells found in seminiferous tubules are A, lytic cells, B, Sertoli cells. Okay, we can clearly change the numbering here, just give me a moment. ठीक है, this is B and this is C, this is C. Alright, so A stands for lytic cells, B stands for Sertoli cells, C is एट्रेटिक फॉलिकुलर सेल्स एंड डी इज क्रोमैफिन सेल्स। आई एम श्योर इनमें से कुछ नाम है जैसे कि एट्रेटिक और यू नो क्रोमैफिन सेल्स, ये आपने नहीं सुना होगा ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर नॉट इन एनसीईआरटी, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, ऑफ कोर्स डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट आई विल जस्ट गिव यू लाइक अ क्विक ओवरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है जो न्यूट्रिटिव सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं उन्हें बच्चा हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक वी रेफर टू देम एज। जो न्यूट्रिटिव सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं बच्चा दे आर एक्चुअली रेफर टू एज the Sertoli cells, ठीक है। Sertoli cells actually help in the nourishment and development of sperms, right, because in seminiferous tubule, ठीक है, lytic cells तो outside the seminiferous tubule होते हैं, प्लस नरिशमेंट में भी कहीं ना कहीं ऐसे मदद नहीं कर रहे होते, और सर्टोली सेल्स ही होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू स्पर्म्स। अच्छा, अब बात आई ये एट्रेटिक फॉलिकुलर सेल्स की। अब देखो आई एम श्योर हम सब ने यू नो सुना है फॉलिकुलर एट्रेशिया के बारे में, ठीक है, और टीचर्स पढ़ाते भी है, आई मीन पर्सनली को सारे टीचर्स पढ़ाते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया के बारे में, ठीक है, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर एट्रेशिया एक बेसिकली क्या होता है हम सबको पता है, यू नो फीमेल्स में यू नो वी are born with a couple of million you know follicles, we are born with a couple of million primary follicles, but क्या होता है ना हमारी बॉडी में जब तक प्यूबर्टी नहीं होती, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, इनमें से कई सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती हैं, राइट, एंड दैट इज रेफर टू एज फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। तो वो होता है फॉलिकुलर एट्रेशिया। अभी देखो इसका कैसे रिलेशन है एट्रेटिक फॉलिकुलर सेल से, अब देखो then so what exactly happens is then you know some of these follicles they fail to develop and they get arrested at any stage of development। अब बेसिकली देखो हर महीने हमको पता है क्या होता है, ठीक है, तो वंस वी रीच प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी तक यू नो काफ़ी सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो चुकी होती हैं, ठीक है, एंड वे ओनली लेव विद 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। और बात वहाँ पे भी नहीं खत्म होती, हर महीने क्या होता है यू नो हम सबको पता है ना एक फॉलिकल ग्रो करती है और जो ओव्यूलेट करती है, पर ऐसा नहीं है कि हमारी ओवरीज के अंदर सिर्फ एक फॉलिकल ग्रो कर रही होती है, एक टाइम पे हर महीने यू नो 10 से 20 यू नो इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी में 7 किसी में 10, सो देयर इज ऑलवेज अ रेंज इन बायोलॉजी, यू कैन नॉट रियली पिन पॉइंट इन यू नो
स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर वैल्यू, दिस ऑलवेज लाइक अ रेंज 10 से 20 के आसपास फॉलिकल्स ग्रो करती हैं ओवरी में, ठीक है। उनमें से एक फॉलिकल जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है और ये डोमिनेंट फॉलिकल बन जाती है, ठीक है। बाकी जो फॉलिकल जो ग्रो हो रही थी लेकिन सारी ग्रो नहीं हो पाई इस डोमिनेंट फॉलिकल की प्रेजेंस में, अब ये क्या करेंगी सारी फॉलिकल्स, नाउ दीज फॉलिकल्स नाउ दैट दे फेल टू डेवलप दे विल गेट अरेस्टेड, ये अरेस्ट हो जाती है किसी ना किसी फेस में, तो अब ये क्या करती है रिग्रेस हो जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ओव्यूलेशन। तो बेसिकली इनके इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स जो है यहाँ पे मैंने बताया, इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स दे आर नथिंग बट दे आर द डाइंग सेल्स ऑफ दिस ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल के मरते हुए सेल्स है, राइट, इन ओवेरियन फॉलिकल्स के मरते हुए सेल्स इनको हम बोलते हैं इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, जिनका इटरेशिया हो रहा है। आई होप दैट मेड सम सेंस, बनाया सेंस। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। Alright, now let's have a look at question number 6 and here's what it says. Question number 6 बोलता है the nutritive cells found in seminiferous tubules are, is it A. Leydig cells, is it B. Sertoli cells, is it C. Iteratic follicular cells or is it option number D. Chromaffin cells? What do you think बच्चा? अब देखो सबसे पहले जो न्यूट्रिटिव सेल्स पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में वो हैं सर्टोली सेल्स। दिस वाज अ वेरी इजी आंसर, राइट, डिड नॉट नीड मच ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स और क्रोमैफिन सेल्स, जिनके बारे में हम शायद आपको नहीं पता होगा या फिर बहुत सारे बच्चे हो सकता है उनको पता भी हो, you know, who are doing that little bit of extra also. You do not trust me, you do not really need to know much about these, but now that it's a part of the question, I'll just give you like a quick overview, थोड़ा सा like without getting into the nitty-gritties, we'll just like superficially समझाने की कोशिश करती हूँ। आई एम श्योर आप सबने फॉलिकुलर एट्रेशिया के बारे में सुना होगा, राइट। जैसे हम जो फीमेल्स होते हैं वे बॉर्न विद a couple of million primary follicles in our ovaries, but बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इनमें से कई सारी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, हर महीने जब क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारी ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप करती हैं, जिनमें से एक फॉलिकल एकदम वेल डिफाइंड मैच्योर फॉलिकल होती है, ग्राफिन फॉलिकल, जो इवेंचुअली ओव्यूलेट करती है, बेसिकली बर्स्ट आउट करती है एंड इट रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉलिकल ग्रो कर रही होती है एक ओवरी में, इट्स लाइक इट इज़ ऑलवेज अ रेंज इन बायोलॉजी, राइट। 10 से 20 फॉलिकल्स ग्रो कर रही होती है, उनमें से जो सबसे जल्दी ग्रो कर जाती है और सबसे डोमिनेंट बन जाती है, राइट, ठीक है, दैट इज़ द मैच्योर फॉलिकल विच अल्टीमेटली अंडरगोज ओव्यूलेशन। बट उसके अलावा जितनी भी फॉलिकल्स हैं विच हैव फेल्ड टू डेवलप एंड दे हैव गॉट अरेस्टेड एट सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, वो क्या कहती है ना, देन दोज फॉलिकल्स विल एक्चुअली रिग्रेस, वो कहीं ना कहीं रिग्रेस हो जाती है, मतलब वैसे कहते हैं सिकुड़ जाती हैं, समवेयर रिग्रेस और एंड इट डिसअपियर, इवेंचुअली रिग्रेस होकर डिसअपियर हो जाती है। तो इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स आर नथिंग बट दीज आर द डाइंग सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ये जो कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स है ना जो मर रही हैं, ठीक है, उनके सेल्स हैं। इटरेटिव फॉलिकुलर सेल्स आर नथिंग बट द डाइंग सेल्स, मरते हुए सेल्स, द डाइंग सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, राइट, ओवेरियन फॉलिकल्स। आई होप दैट इज क्रोमैफिन सेल्स की बच्चा अगर मैं बात करूँ, क्रोमैफिन सेल्स दीज आर द सेल्स विच एक्चुअली स्टोर एंड रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो बेसिकली क्रोमैफिन सेल्स जो होते हैं ना ये एड्रीनल मेडुला में पाए जाते हैं। क्रोमैफिन सेल्स आर एक्चुअली द सेल्स विच आर फाउंड इन द एड्रीनल मेडुला, और हम सबको पता है एड्रीनल मेडुला में से हमारे दो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिस कैटेकोलेमीन्स, ठीक है, वो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, राइट। सो इनफैक्ट दीज क्रोमैटिन सेल्स आर द सेल्स विच एक्चुअली स्टोर एंड रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट। तो ये क्रोमैफिन सेल्स हो गए, ठीक है। पर यहाँ पे बात क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रिटिव सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं, दे आर इंडीड द सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स भी बोलते हैं इनको, इसलिए हम, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर्स व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा बोलता है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, द ऑप्शंस आर A LH, B FSH, C AGH और D prolactin। व्हाट डू यू थिंक? सर्टोली सेल्स बच्चा रेगुलेट होते हैं बाय विच पिट्यूटरी हार्मोन? सर्टोली सेल्स को कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट कर रहा है? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू अगर दूँ तो हमको पता है हमारे पास हाइपोथैलेमस है, द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, राइट। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये GnRH है, ये जाके किस पे काम करेगा? इट विल एक्चुअली एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, इट विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और उसे बोलेगा कि एक्चुअली ना इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन्स। देखो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कराने वाला हार्मोन, तो GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करा देता है। व्हाट आर गोनाडोट्रोपिन्स? FSH एंड LH, ठीक है। अब ये जो FSH है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल एक्चुअली एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। ये किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आप पे यहाँ पे LH विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये एक्चुअली अभी आपने देखा था ना डायग्राम में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस थी इंटरस्टिशियम, उसमें कुछ सेल्स थे, दीज आर लेरिक सेल्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन लेरिक सेल्स पे जाके काम करता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आई थिंक ओके आई हैव एडेड अ डायग्राम एज वेल। हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि hey anterior pituitary, now it's time for you to release the gonadotropins. So anterior pituitary like an obedient child releases the two gonadotropin जो कि FSH और LH, जिसमें FSH एक्चुअली एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और यू नो सर्टोली सेल से कई सारी चीज़ें बनवाता है, जैसे कि ये कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स भी रिलीज़ कराता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज़ कराता है, नॉट जस्ट दैट इनहिबिन भी रिलीज़ होता है। ठीक है, सर्टोली सेल इनहिबिन भी रिलीज़ करते हैं, और ये जो इनहिबिन है ये एक्चुअली में एक नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। ये जो इनहिबिन है नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को। ठीक है, वहीं भी अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेरिक सेल्स पे या इंटरस्टिशियल सेल्स पे, और इंटरस्टिशियल सेल्स से सिक्रीट कराता है टेस्टोस्टेरोन, जो भी कहीं ना कहीं मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 8, and here's what it says. Question number 8 बोलता है, if for some reason the vasa efferentia in the human male reproductive system gets blocked and the gametes will not be transported from A. testis to epididymis, B. epididymis to vas deferens, C. ovary to uterus, or is it D. vagina to uterus? बच्चा अगर मान लो किसी भी कारणवश जो हमारी वासा एफरेंशिया होती है, लेट्स से अगर ये टेस्टिस है, टेस्टिस में हमारे पास ऐसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, ऐसे 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, मैंने तो सिर्फ 3 ही दिखाए हैं। ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल में ना हमारे पास होते हैं हाईली कॉइल्ड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं बच्चे, ये ओपन होते हैं इनटू द रेटिटेस्टिस। ठीक है, एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रेटिटेस्टिस इवेंचुअली ओपन होती है इनटू द वासा एफरेंशिया। किसमें ओपन होती है? इनटू 10 to 12 वासा एफरेंशिया। और ये वासा एफरेंशिया के पीछे क्या प्रेजेंट होता है? हमारे एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मान लो किसी भी कारणवश ये जो हमारी वासा एफरेंशिया है ये ब्लॉक हो जाती है, तो गैमेट्स कहाँ से कहाँ नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। द गैमेट्स विच आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस विल नॉट गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस। सो दैट मेक्स ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, राइट। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम भी बताऊँ तब क्लियरली देख सकते हो, ये है हमारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में आप देख पा रहे हैं हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, राइट, जो इवेंचुअली ओपन अप होते हैं इनटू रेटिटेस्टिस, एंड दिस इज द वासा एफरेंशिया एज यू कैन क्लियरली सी। अब मान लो ये वासा एफरेंशिया किसी कारणवश ब्लॉक हो जाएगी, तो अब इस टेस्टिस से यहाँ पे स्पर्म्स भेजोगे कैसे? देयर इज़ नो वे, राइट। सो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो अगर मान लो फॉर सम वियर्ड रीज़न ये हमारे एफरेंट आर्टीरियोल्स आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, वासा एफरेंशिया एक्चुअली में अगर किसी कारणवश ब्लॉक हो जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने स्पर्म्स को टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में भेज ही नहीं पाएंगे, राइट। So which of the following will get hampered, which is the transport of sperms from testis to epididymis is what gets hampered. ठीक है, now moving on to the next question, which is question number 9, and here's what it says. Question number 9 बोलता है, read the following statements about the given diagram carefully and state which of them are correct. इनमें से क्या ठीक है, right? You have to just tell that. अगर मैं बात करूँ ए की, just to look at the option, अगर ए की बात करो, ए बच्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वास डेफरेंस को। ए रिप्रेजेंट्स द वास डेफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर बात करो वास डेफरेंस की, तो ए का इन्हें क्या बोला है? वास डेफरेंस कैरीज यूरिन एंड स्पर्म्स, दैट्स इनकरेक्ट। वास डेफरेंस यूरिन थोड़ी कैरी करेगा बच्चा। बी ने क्या लेबल करेगा? बी दे हैव लेबल्ड एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, बी दे हैव लेबल्ड एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, राइट। तो बी जो है ये बोल रहे हैं, बी जो होता है वो सिक्रीट करता है एक फ्लूइड जो हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस, राइट। तो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। Bulbourethral glands actually secrete a mucus, right? They secrete mucus, right? And that mucus actually helps in the lubrication of penis, right? So D तो correct है, 2 तो correct है, so we have to select the correct options, right? अभी देखते हैं बाकी, we will have a look at the others as well. अगर थर्ड वाली की बात करूँ तो D produces testosterone but not sperms. अगर D की बात करूँ तो D they have represented the testis. अब ये बोलिए जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस करता है बट स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, विच इज़ सो इनकरेक्ट, राइट। अगर ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है तो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है, राइट, विच इज़ वाई इट्स रेफर्ड टू एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ए इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट। वी लुक एट द फोर्थ वन विच इज़ सी स्टोर स्पर्म्स। सी की बात करूँ तो सी है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस डेफिनेटली स्टोर स्पर्म्स। इनफैक्ट बी मोर प्रिसाइज विद ऑल ऑफ यू, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, जो आई गेस आई थिंक हमारा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या सो विच इज़ वाई बची हुई डिटेल्स मैं उसमें दूंगी, अदरवाइज यू नो आई माइट एंड अप रिवीलिंग द आंसर। तो सी की अगर मैं बात करूँ तो ये सी जो है एपिडिडाइमिस की कहीं ना कहीं स्टोरेज और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स में मदद करता है। सो इवन द फोर्थ वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड देन वी हैव टू मार्क विच ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। 2 ही करेक्ट है, विच इज़
2 and 4. So that makes option number C the correct answer. I hope that is clear to everybody.